Assalamu alaikum everyone. This is Memuna Yunus and I am going to present today. I hope you all are fine. If you have any question regarding our previous session, you can ask. Let's welcome Ma'am Aiza Zafar as she is the speaker of today's meeting and she is going to present today on another topic. Ma'am Aiza, the screen is always yours. You can present now. Assalamu alaikum everyone. Welcome again. Yesterday we had learned about SDG 6. Today we have our next SDG, which is SDG 7, renewable, clean and affordable energy for all. So if you have any questions regarding the previous session, you can ask. And regarding this session, we will have a question answer session at the end of this training. So let's start. I think most of people were present yesterday. There is no need to introduce the SDGs. We should go straight to SDG 7. So we have our SDG 7, clean and affordable energy. SDGs are sustainable development goals which are needed to be accomplished till 2030. There are mix of goals which focus on different domains, including health, education, population, infrastructure development, and energy. And energy is one of the most important as sustainable development goals among these. So why clean and affordable energy sustainable development goal 7 is important? Because it has to ensure the sustainable and clean energy for our planet. So energy is जो हमारा planet है, ये वाला SDG is related to the health of our planet. If the energy is not clean, so it will pollute our planet, and if the energy is not affordable, it won't contribute in accomplishment of the other SDGs. जिस तरह से no poverty और दूसरा infrastructure development वाले SDGs होंगे, वो SDG 7 के बगैर accomplish नहीं हो सकते. So clean energy is really important for our climate and planet, for the health of our environment, and affordability will contribute in the economic development and economic aspects of SDGs. So why this SDG is important and why achieving this is a great challenge? Because as the population is increasing, जैसे जैसे हमारी population increase होती जा रही है planet की, वैसे वैसे हम लोग की एनर्जी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं. वैसे वैसे हमने एनर्जी को प्रोड्यूस करना भी ज़्यादा किया है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्पेसिफिकली इन सब सहारन अफ्रीका जिनके पास एनर्जी नहीं है. एंड ऑल्सो अगर हमारी एनर्जी की डिमांड्स बढ़ रही हैं और उस एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, बट जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्लीन नहीं है. सो इस SDG का मकसद ये है कि एक तो आप एनर्जी को एक्सेसिबल बनाएं, एनर्जी सप्लाई को इंश्योर करें. दूसरा, जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो क्लीन भी होनी चाहिए. मींस कि इट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, बट इट शुड आल्सो फोकस ऑन द health of the environment as well. I think I'm audible and my screen is okay. Maimuna, can you confirm? Ma'am, your screen is not visible. You are audible, but screen is not visible. Sorry. So any one of you have ever heard about SDG 7, SDG 6 or SDG 6 बहुत common है, because water is a human right issue. Water हर इंसान का basic right है, और water scarcity is a human right issue. उसके बारे में हर किसी ने सुना है. Climate एक्शन के बारे में भी हर किसी ने सुना है, बट ये SDG थोड़ा इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाता है. सो इफ any one of you has any idea about this SDG 7, or any one of you working on SDG 7?
Bushra. Yes, Bushra. जी अस्सलाम वालेकुम। Muslim. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया, अभी इस पे वर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन आइडिया ज़रूर है कि हर किसी के लिए रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो असेस करना, उसका ये भी उसका राइट है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो लाइक उसमें हम काफ़ी हद तक जो है ना छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। लाइक जैसे कॉमन जो बल्ब हम यूज़ करते हैं उसकी जगह हम ये एलईडी बल्ब्स और ये वाली चीज़ें यूज़ करें। इसके अलावा इसमें इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो लाइक हमें जो है इंस्टॉ सोलर पैनल्स जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए इंस्टेड ऑफ हम ये वापडा की यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी लाइट्स का ख्याल रखना चाहिए, वट एवर ये सारी चीज़ें। और अगर बड़े स्केल पे बात की जाए तो उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर हम आए, उसमें जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, लाइक कीनिया में उसका एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चला और उसमें क्लाइमेट पे बड़ा अच्छा उसका इफ़ेक्ट था। और इसके अलावा विंड एनर्जी, ये सारी की सारी ये एनर्जी की इसी सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाती हैं। तो मोस्टली इतना सही ऑलमोस्ट इसके बारे में भी नॉलेज है। Exactly, Bushra. Thank you so much. So, yes, Bushra is right. ये सारी चीज़ें इस SDG 7 इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है. So, population increase, with the increase in the population and urbanization and economic growth, energy has become an increasing requirement. और एनर्जी की इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंडस्ट्रीज, रनिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है. इफ अवर इंडस्ट्रीज विल नॉट वर्क तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पुअर हो जाएगी. सो एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है. सो SDG 7 की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के SDGs को एकम्प्लिश करने में हमारी मदद करती है. सो ऑल्सो एनर्जी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब, अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी है तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल एंड मोर अप्रोप्रिएट टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ दीज गोल्स. सो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसके अंदर बताया हुआ है कि 675 मिलियन पीपल अभी भी उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की. और इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेसिबिलिटी ना होने का मतलब ये कि आपके पास दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं है. एज वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इंटरनेट, our all appliances, mobile phones and everything run on electricity. So अगर आपके पास electricity नहीं है, you are cut off from the entire world and you are away from many kinds of development. दूसरा ये कि एनर्जी एफिशिएंसी ये कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, और अगर कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए. तो एनर्जी एफिशिएंसी हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा नहीं है. वी नीड टू डबल और ट्रिपल द पेस ऑफ दैट एनर्जी एफिशिएंसी. दूसरा ये कि इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स वो दिन साल साल कम होती जा रही हैं. और और एक और रीज़न इसके अंदर ये बताई हुई है कि हमारे यहाँ इनएफिशिएंट कुकिंग सिस्टम्स होते हैं. इनएफिशिएंट कुकिंग सिस्टम्स ये हैं कि जो गैस बर्न होती है वो बहुत सारे केमिकल्स, हाइड्रोजन, मीथेन गैस वो रिलीज करती है हम सबके घरों में. और दूसरा ये कि रूरल एरियाज में वो लकड़ी जला के चूल्हे गर्म किए जाते हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा लीथल केमिकल्स रिलीज होते हैं. वो एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा जरिया है. और उस ओपन बर्निंग की वजह से बहुत सारी अमवात हर साल होती हैं. तो ये एक इनएफिशिएंट एनर्जी सप्लाई है जिससे हम कुकिंग करते हैं, और खुसूसन रूरल एरियाज में. So it means that there is a need to move towards a more efficient, energy efficient cooking system, जिसमें एक तो एनर्जी एफिशिएंसी हो, एनर्जी हमारे पास अच्छी दी जा रही है, और दूसरा ये कि वो एनर्जी क्लीन हो. और SDG 7 का एक और जो मेजर गोल है वो है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड आपस में कोलैबोरेट करे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें. लेकिन इसका ऑन कॉन्ट्रेरी हो रहा है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बजाय इसके कि एक साथ कोलैबोरेट करे, वो एक साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, और आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कम होती जा रही हैं. तो हमारे पास ये 4 मेन इश्यूज हैं कि अभी भी लोगों के पास पावर सप्लाई नहीं है, और लोगों के पास कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं, और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे. सो लेट्स
have the key targets or objectives of the SDG 7. इसका SDG 7 का मेन टारगेट ये है कि 2030 तक सब कंट्रीज को डेडलाइन मिली हुई है कि आप 2030 तक डेवलप्ड कंट्रीज विल हैव टू मूव entirely towards affordable and clean energy, and whereas developing countries को 30-70 का mix रखना, 30% they need to have renewable energy or 70% they can still use their conventional energy resources like fossil fuels. और दूसरा ये कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है, ग्लोबल शेयर, वी हैव टू इंक्रीज इट टिल 2030. वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 years. और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब अगर हम दो कोयलों से एक चूल्हा चला रहे हैं और वही वही हीट हमने कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव से जनरेट करनी है जो उससे कम कॉस्टली हो और कम जगह घेरे, कम स्पेस घेरे और बहुत कम पॉल्यूटिंग हो, तो ये होती है एनर्जी एफिशिएंसी. तो एनर्जी एफिशिएंसी में हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है और दूसरा ये कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करना है. तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वी हैव टू पार्ट्स. SDG 7 has been divided into two parts. So can someone tell me what does clean energy mean? Clean energy mean which doesn't give any hazard or disadvantages to environment like solar system, the energy from which we are getting from solar system. I think Yes, so. exactly, Roshni. Thank you so much. Yes, clean energy is renewable energy which has no harm for humans as well as for the environment. So there are many sources of this renewable energy. Clean energy को renewable energy कहते हैं. Renewable energy sources, there are many sources. जो major sources हैं वो ये हैं, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट्स के साथ हमारे पास बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आती जा रही हैं, जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे. सो वन ऑफ द मेजर एंड वाइड स्प्रेड एनर्जी रिसोर्सेज सोलर पावर, सन से जो पावर हो रही है वो एनर्जी रिसोर्स है. देन वी हैव विंड. विंड से टर्बाइंस रन होंगे और उससे एनर्जी बनेगी. देन वी हैव हाइड्रो पावर जो पानी से बनेगा. एंड देन वी हैव जियोथर्मल जो अर्थ के नीचे ट्रैप्ड हीट होती है, उस हीट से जो एनर्जी जनरेट होगी दैट विल बी जियोथर्मल. एंड बायोमासेस जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, either from the animal dung, either from wood, either from the agricultural waste और residential या industrial area से जो भी sludge आएगा, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वो बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी कहलाएगी. सो सोलर इज द वाइड स्प्रेड एंड वेरी वेरी नोन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि पाकिस्तान में भी अब सोलर की तरफ स्विच किया जा रहा है. बट इफ वी सी इंटरनेशनली देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर being powered by solar energy, not only electricity but cars, industries and many other things which are powered by solar energy. Like बहुत सारी मशीनरीज हैं जो सोलर एनर्जी से पावर की गई हैं. बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी पे चल रही हैं. और इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली दे गेट इट फ्रॉम सोलर पैनल्स एंड सोलर रिसोर्स. एंड देन विंड. फॉर विंड, पाकिस्तान में बलूचिस्तान एंड सिंध के अंदर विंड टर्बाइंस हैं जो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. विंड सोलर का ये है कि सोलर इज कैन बी laid on many areas. सोलर बहुत सारे मोस्टली एरियाज के लिए अप्रोप्रिएट होता है. जहाँ पे बहुत कम धूप आती है, लाइक नॉर्डिक रीजन्स एंड द रीजन्स विच आर क्लोजर टू द पोल्स, उनके लिए सोलर इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज उनके पास धूप नहीं आती है. बट it is most appropriate for the countries near to the equator and also for the Asian countries as well. So solar बहुत सारी countries में यूज हो रहा है, but wind is not appropriate for every area. Wind जहाँ अच्छी लेवल ऑफ विंड होगा वो विंड एनर्जी या विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल कर पाएंगे. सो पाकिस्तान में विंड एनर्जी रिसोर्स का जो सबसे अप्रोप्रिएट लोकेशन है वो सिंध और बलोचिस्तान है. लाइकवाइज हाइड्रो पावर का भी. और जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स भी बहुत कम जगहों पे लग सकते हैं, बहुत कम नहीं, बहुत स्पेसिफिक जगहों पे लग सकते हैं. लाइक नॉर्वे के पास जियोथर्मल रिसोर्स है बहुत बड़ा. So they power their entire economy by 99% of their economy, 99% of their energy requirements by geothermal energy. Geothermal में ये होता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी ट्रैप होती है, they just dig it in
एंड जो उस एनर्जी फॉर्म को वो लोग वो करते हैं, कैप्चर करते हैं, और उस एनर्जी के थ्रू फिर वो पावर सिस्टम्स को वो करके पावर करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की जगह वो जियोथर्मल एनर्जी यूज कर लेते हैं। इससे ये होता है कि अर्थ की एक तो एनर्जी भी यूज हो जाती है जो कि अदरवाइज वेस्टेड थी, और आपके पास क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी भी बन जाती है, सस्ते दामों में भी, और वो इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करती। सो लेट्स biomass energy. First of all, let's see the interconnection of the SDGs with other SDGs. SDG 7 is linked with climate action. Of course, अगर हम fossil fuel से energy produce कर रहे हैं, it will produce hell lot amount of pollution. So climate action का इस SDG का डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट एक्शन पे। दूसरा, ये SDG जो है वो लाइफ बिलो वाटर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बिकॉज अगर हम फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की गई एनर्जी को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एमिशंस करती हैं, और वो एमिशंस ना सिर्फ एयर पोल्यूशन बल्कि वाटर पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा सोर्स है। और उस वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे स्पीशीज और बहुत सारी बीमारियां जो पिछले सालों में कॉमन नहीं थी, अब वो कॉमन होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका ये भी एक वजह है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल थिंग्स, बट इसकी एक वजह ये भी है कि केमिकल्स फ्रॉम द एयर आर बीइंग डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर, और वो केमिकल्स ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल्स इमिशन, और उनकी वजह से फिर जो लाइफ बिलो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, और फिर उन ऑर्गेनिजम्स पे हम डिपेंड करते हैं। तो ना सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनफर्टिलिटी बल्कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इनफर्टिलिटी इस वजह से बढ़ती जा रही है। दूसरा ये कि पार्टनरशिप फॉर दिस गोल, SDG 7 को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG 6 के लिए पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट थी, बट नॉट एट दैट मच एक्सटेंड, बिकॉज SDG 6 जो है वो पर्सनल और सोशल और पब्लिक लेवल पे डिवाइडेड था। पर्सनल लेवल पे ज़्यादा, और फिर सोशल लेवल आता था, और फिर पब्लिक। सो पब्लिक लेवल पे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे, फिल्टर लगाना या इस तरह के, लेकिन SDG 6 पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। SDG 7 पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज SDG 7 को अकम्प्लिश करने के लिए आपको एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। अगर कि कोई बंदा सोलर पैनल इंस्टॉल भी कर रहा है, तो सोलर पैनल अपने घर पे इंस्टॉल करने के लिए उसको किसी कंपनी से राब्ता करना पड़ेगा, और वो राब्ता भी इस सूरत में करेगा कि अगर वो सोलर पैनल को वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। सो वो कंपनी फिर उसको सोलर पैनल प्रोवाइड करेगी, और उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस स्पेसिफिक रीजन के साथ। तो पार्टनरशिप्स बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस will directly impact the accomplishment of SDG 7. दूसरा ये कि zero hunger, SDG 7 also is directly linked with the zero hunger, means अगर economic condition किसी मुल्क की अच्छी है, like developed countries have moved entirely towards not entirely but mostly towards renewable energy. इससे ये होगा कि इनका SDG 7 अकम्प्लिश हो रहा है। दूसरा ये कि अगर वो SDG 7 को अकम्प्लिश कर लेते हैं, क्लीन एनर्जी बनाते हैं, सो दे कैन मोर प्रोड्यूस, दे कैन मोर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। सो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर भी पॉपुलेशन की प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। Also, good health. Yes, as we all know, can someone explain me this point, good health and well-being ka? Why good health and well-being is linked to the SDG 7? Yes, this is may I explain? Yes, Roshni. क्योंकि SDG 6 और 7 में हम अगर मोस्टली हम बात करें तो हम क्लाइमेट के हवाले से या फिर विंड के हवाले से जो हमने डिस्कशन की, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो होता है वो हमारे हेल्थ पे होता है। जब हेल्थ और क्लाइमेट चेंज या फिर इस तरह की सिचुएशन होगी, जैसा कि हमने बात की दैट इफ वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन फॉसिल फ्यूल्स, तो इससे हमारा जो क्लाइमेट इशू है वो बहुत ज़्यादा होगा, और इसका ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर होगा। ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट ये होगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट, सबसे पहले तो मीट कंजम्पशन से भी है, इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट गैसेस जो है वो खारिज होती है। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाती है। जब ये हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो इसका एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा। अगर एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा तो वो तो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं,
इसके अलावा इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में डिफरेंट केमिकल जो है वो यूज होते हैं, वो केमिकल जाके वाटर्स में डिजोल्व होते हैं जब और वाटर में हम जो मोस्टली लोग जो है वो मीट कंजम्पशन या फिर जो फिशेज है उनको कंज्यूम करते हैं और उस वाटर में जो वो फिश होती है वो उनको खा लेती है, तो वो जो डिजीज होती है वो उनमें ट्रांसफर हो जाती है और फिर जब उसको हम खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर हम देखें तो अभी 2 सालों में हमारे साथ जो मैंगो रेशो है वो 60% रिड्यूस हुआ है। किसकी वजह से? उसका भी मेन रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज है और डिफरेंट चीज़ें हम इस तरह यूज़ करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं बनाता बल्कि उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका हम अगर हमारा सेहत जो हेल्थ है वो खराब होगा तो इसका हमारी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होगा। इकोनॉमी पे ये इफेक्ट होगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम एग्रीटेरियन है और मोस्टली क्लाइमेट की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो ये हमारा इकोनॉमिकली लॉस है और इसका हमारे हेल्थ पे भी बहुत बड़ा जो है लॉस है। तो मैं सबसे ज़्यादा SDG 7 पे काम करना चाहिए दैट and we need to make policies that how we can make our environment protect and how we can control the climate change, which is the global problem and nowadays most of the people are suffering from climate change. Exactly. Thank you so much, Roshni, for your beneficial contribution. And yes, you are right. Not only industries, but अगर हम देखें हमारी एटमॉस्फेरिक एमिशंस का सबसे बड़ा जो प्रोपोर्शन है 70% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एमिशंस जो है वो हमारी व्हीकल्स से आती हैं। सो इन गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं। जो सोर्स है वो कोल या नेचुरल गैस होता है और उनसे जो फिर केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो मीथेन है या लेड है, लेड भी एक बहुत बड़ा सोर्स है फॉर वाटर कंटेमिनेशन। सो इन चीज़ों से फिर हमारे पहले वो एयर में जाते हैं, फिर कुछ पार्टिकुलर मैटर भी रिलीज होता है जिससे फिर वो स्मोक और फोक के इश्यूज आते हैं। और फिर अगर ये केमिकल्स बारिश होने से पानी में चले जाएं तो पानी के अंदर जो सारी स्पीशीज हैं वो और फिर उस पानी को ट्रीट करके हम तक भी दिया जाता है या अनट्रीटेड वाटर भी हम लोग को सप्लाई किया जाता है। तो उस पानी की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजम्पशन से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट होते हैं। दूसरा ये कि अगर हम लेट सपोज इफ वी से कि हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स ले आते हैं और इस मसले को ही हल कर देते हैं। लेट सपोज अगर लोगों ने उसको अफोर्ड भी कर लिया और इलेक्ट्रिक कार्स आ गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी से पावर हो रही है, बट इलेक्ट्रिसिटी अगेन एक अनसस्टेनेबल तरीके से बनाई जा रही है, एक अनक्लीन मेथड से बनाई जा रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी ना अफोर्डेबल है ना ही वो क्लीन है और दिन ब दिन वो अनअफोर्डेबल होती जा रही है आवाम के लिए। सो ये yes, if anyone wants to contribute, yes तैयबा। हमारे पास जो है एनर्जी बनाने का सबसे बड़ा सोर्स तो डैम है ना, तो मतलब डैम तो हमारे कंट्री में है ही सिर्फ 4। तो जब तक मतलब ज़्यादा सारी डैम्स नहीं बनेगी तो फिर उस वक्त तक तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो सॉल्व नहीं हो सकते। तो हम 2030 तक जो है वो कैसे वो गोल अचीव करेंगे जो हमें कहा हुआ है अचीव करने के लिए। डैम्स आर नॉट ओनली वे के डैम्स सिर्फ तरीका नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि इस SDG 7 का मेन हिस्सा वो है पार्टनरशिप, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। सो हर कंट्री मतलब जैसे हम पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान के पास डिफरेंट SDGs है, पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमें किस SDG को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर वो SDG 7 को उसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, SDG 7 के अंदर अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना सकता है जिसके थ्रू डैम्स की जरूरत नहीं होगी उसे, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। वी विल सी कि डेनमार्क ने अपनी 110% एनर्जी प्रोडक्शन किस तरीके से अचीव किया, वो भी विदाउट डैम। मतलब डैम्स आर नॉट ओनली वे टू, डैम्स एक कन्वेंशनल वे है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें अगेन फॉसिल फ्यूल यूज होता है बहुत बड़ी अमाउंट में। 2 डैम्स हैं उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में हमारे फॉसिल रिसोर्स यूज होते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। डैम्स की जो बात होती है वो सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती है। हम जो इतने अरसे से मीडिया पे सुनते हैं कि डैम्स चाहिए, वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। आधे से ज़्यादा इलाकों में या तो बिजली बहुत ज़्यादा घंटों के लिए जाते हैं और कुछ एरियाज में बिजली आती ही नहीं है। तो इस वजह से हमें डैम ज़्यादा सुनाई देता है क्योंकि
आप पहले क्लीनर एनर्जी की तरफ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो क्लीनर एनर्जी की तरफ तो बाद में मूव करेगा, पहले वो पूरी तरीके से एनर्जी तो दे देना अपनी आवाम को। तो अगर वो अपनी आवाम को डैम बना के एनर्जी नहीं दे सकता, तो वो अफोर्डेबल और कोई रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव की तरफ चला जाए, ऐसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू, कि जिससे उसकी आवाम को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहें और ऑल्सो उनके अफोर्डेबिलिटी भी इंश्योर हो, के वो पाकिस्तान के लिए भी अफोर्डेबल हो, पूरी स्टेट के लिए अफोर्डेबल हो, उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, और आवाम के लिए भी वो एनर्जी फिर अफोर्डेबल हो जाए। जैसे 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 हमारे पास सोलर पैनल्स का इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया है, इस साल बहुत ज़्यादा देखा गया कि सोलर पैनल्स अब एलीट से पहले एलीट्स के पास होते थे, फिर अपर मिडिल क्लास के पास है, और अब मिडिल क्लास भी इसको अफोर्ड करना नहीं, बट वो दे आर नाउ ऑब्लिगेटेड टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अब सबकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाते जा रहे हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है 50-60,000 बिल। तो अब सब हाउस होल्ड्स का, एम आई राइट के 60 और 50-60,000 बिल तो बहुत कॉमन हो चुके हैं गर्मियों में, और सर्दियों में फिर आई डोंट नो इस साल 15-20,000 शायद आ जाए, या 25,000 आ जाए। सो 50-60,000 बिल उनके लिए इतना अफोर्डेबल नहीं है, बल्कि उनके लिए ये चीज ज्यादा वो वायबल है कि 10 लाख का आप सोलर पैनल लगा लो और एक एसी ऑन कर लो। और गर्मी भी, जैसे कि आप सबको पता है कि हीट वेव दिन भर इन टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 21st June was the hottest day in Pakistan, was recorded in Pakistan, और इस साल उससे भी ज्यादा टेम्परेचर था। तो जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उतनी हमारी नीड भी बढ़ेंगी कि गर्मी को किस तरीके से कम किया जाए। हमारी फ्रिज की नीड बढ़ जाएगी, हमारी एसी की नीड बढ़ जाएगी, और बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइक एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इस गर्मी को। बच्चों के लिए ये गर्मी बहुत लीथल है, और बहुत सारी औरतें होती हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं होता। सो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो एसी चलाने पे हम पूरी आवाम मजबूर है, तो उस एसी के बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो सोलर पैनल्स का यूजेज और इंस्टॉलेशन अब वाइड स्प्रेड हो गई है। इससे ये हुआ कि वापदा पे भी एक तरह से, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ट्रेंड, तो वापदा पे भी एनर्जी लोड कम होता जाएगा। उससे ये होगा कि वो इस एनर्जी को फिर वो लोग जिनके पास नहीं है उसके लिए एक्सेसिबल, कुछ एरियाज के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल हो जाएगी, और दूसरा ये कि अफोर्डेबल भी हो जाएगी आवाम के लिए कुछ हद तक। बट रादर देन बिल्डिंग डैम्स, पाकिस्तान कोई चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ जाए, ताकि वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी गोल SDG 7 को अकॉम्प्लिश कर सके। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट वेल। सो thank you, Right. Roshni. So then we have infrastructure. So without infrastructure development, we cannot achieve SDG 7. Infrastructure development के बगैर SDG 7 को accomplish नहीं किया जा सकता। I think there's someone. Please unmute your mic. Roshni, do you want to say something? यस, यहाँ मैं एक पॉइंट शेयर करूँगी। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ हिमालय पहाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान में है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रही है। जैसे वो मेल्ट हो रही है तो उसकी सी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। जब सी लेवल राइज हो रहा है तो उससे फ्लड आने का भी बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, और जब फ्लड आएंगे तो फिर उससे बहुत ज़्यादा लाइक एग्रीकल्चर लॉस भी हमारा होगा, वेट लॉस भी होगा, डिफरेंट जो है नुकसान बहुत तरीके से इंसान जो है वो सफर हो Okay, सकता है। thank तो इससे you. बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने में जो है वो अपना फोकस करें। तो ये भी एक आई थिंक बेस्ट टेक्निक है कि कुछ लोग कहते हैं कि डैम्स नहीं बनने चाहिए, बट आई थिंक कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें डैम्स बनाने चाहिए, जो क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रीन एंड क्लीन जो SDG 7 है उसके साथ साथ हमें जो अगर हम देखें फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है और अभी भी जो जिसके असरात हमें नज़र आ रही है वो वाटर स्कैर्सिटी है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। Thank you. Yes, thank you for raising this point again. The conclusion of your statement is कि हर SDG एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे आपने कहा कि इन चीज़ों के बढ़ने से अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट इफेक्ट्स आए हैं, जो कि ग्लेशियर मेल्टिंग और फ्लडिंग और सी लेवल राइज से
anyone wants to say something like Mohammed, I will let me complete it first, and you can unmute your mic. So unprecedented effects हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए तबाहकुन है. Again, clean energy, renewable energy is really important to achieve our SDG 17 SDGs. एंड वो फिर क्लीन एनर्जी इंश्योर करेगी कि हमारे ये इफेक्ट्स ख़त्म, इरेडिकेट तो नहीं हो सकते, बट उनका इम्पैक्ट और वो इम्पैक्ट्स को कम कर, उनको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगे. और डैम्स का बनना भी इम्पोर्टेंट है. यस, यू आर राइट, बट इसमें फिर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे जो हम सब जानते हैं. सो यस मोहम्मद, यू वांट टू से समथिंग? वालेकुम अस्सलाम. आपकी आवाज़ बहुत कम है, आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा. Now am I audible? यस यस. Okay. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा अभी. सबसे पहले यहाँ पर बात हुई उसकी एनर्जी कंजप्शन की, देन फॉसिल फ्यूल की, और देन सोलर पैनल्स की. तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी कंजप्शन की. तो हमें जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए. सोलर पैनल्स की तरफ ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन सोलर पैनल्स की भी लाइफ होती है ना, शेल्फ लाइफ होती है. तो वो अबाउट 10 ईयर्स और 12 ईयर्स होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. उनकी 15 ईयर्स होती है. उसके अंदर लेड यूज़ होता है और लेड डिकम्पोज नहीं होता. तो उसको फिर हम दोबारा 15 से 20 साल के बाद इतना ज़्यादा सोलर पैनल का जो बर्डन होगा उसे हम कैसे, क्योंकि लेड की जो लाइफ होती है वो 10 से 15 साल होती है. उसके बाद वो अपना जो है, कह लें कि अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली जो है वो नहीं पूरे कर पाता. आपको उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है. तो इतना ज़्यादा जो सोलर के ऊपर हम कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका बर्डन फिर लैंडफिल्स के ऊपर आएगा, और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. पहला, सो हमें जर्मन साइंटिस्ट हैं एक, अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं सुबह ही एक रिसर्च पढ़ रहा था उनके बारे में. तो उन्होंने फुटस्टेप्स से एनर्जी क्रिएट करने के लिए ना एक प्रपोजल दिया था, जिसके ज़रिए उन्होंने माइक्रोब्स और वुड को यूज़ करते हुए एक पैनल सा बनाया था, जो हम अपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अटैच करते हैं, और ह्यूमन फुटस्टेप्स से जितने लोग उसके ऊपर चलते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये एक सस्टेनेबल वे है एनर्जी प्रोड्यूस करने का. सेकंड, फोसिल फ्यूल. अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सेशन बहुत लंबा हो जाता है. कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके वाइंड अप करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ. फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का यूजेज और कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और वो फिर हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स पे भी इफेक्ट करता है. हमारी जो कह लें कि आने वाले जो हमारा सस्टेनेबिलिटी, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फॉसिल फ्यूल से, इनकी जो कंजप्शन है. हाँ, क्यों, इसके लिए एक रिसर्च निकली है, और ये एक बहुत बहुत अच्छा वे है कि आप अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकें. वो ये कि आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर टैक्सेशंस को लगाएं, टैक्सेस लगाएं उसके ऊपर लेजिस्लेशंस को पुट करें. ठीक है. उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन क्योंकि बढ़ रही है, तो जब आप उसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, एक आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो गया. एक पहला गोल आपने सस्टेनेबिलिटी का आपने जो है अचीव कर लिया, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. सेकेंडली, आप उसी इकोनॉमिक ग्रोथ के ज़रिए अपनी दूसरी मुल्क की नीड्स को पूरा कर सकते हैं. जैसे कि आप, जी, जैसे कि आप उसी पैसों के साथ प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं. प्लांटेशन से क्या होगा, प्लांटेशन से ये होगा कि आपका जो हीट स्ट्रेस है ये डाउन आ जाएगा. जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी, आपका हीट स्ट्रेस कम होगा, आपका ग्लोबल जो है वार्मिंग वो कम होगी, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका एनवायरनमेंट सस्टेन हो जाएगा. ठीक हो गया. यस मोहम्मद, यू आर राइट. एंड इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपने फॉसिल फ्यूल वाली की, में आपने कहा टैक्सेस और पेनल्टीज की बात. सो पेनल्टीज एंड टैक्सेस हैं, बट ऑन इंडस्ट्रियल स्केल अगर हम बात करें, जो मेजर फॉसिल फ्यूल इमिशंस पाकिस्तान में, जो मेजर फॉसिल फ्यूल इमिशंस का जरिया पेनल्टीज और टैक्सेस देना उनके लिए आसान है, बजाय इसके कि वो फॉसिल फ्यूल्स को कट डाउन करें. यस, यू कैन कंप्लीट योर. एक्चुअली दैट वाज नॉट पेनल्टीज, इट वाज अबाउट टैक्सेशंस, लीगल टैक्सेशंस. पेनल्टीज को आप कह लें कि एक नेगेटिव इमेज आ जाएगी. तो हम इसको टैक्सेशन की तरफ लेके जाएं, और जैसे हम
आप म्यूट हो गए दोबारा से। सो ओके, आपका आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया। ये बिहेवियरल चेंज से ज़्यादा रिलेटेड है। टेक्सास पाकिस्तान में, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके ओके सॉरी। सो टेक्सास ज़्यादा कर दी है तो अवाम ने उस वो डिस्करेज होगी, अवाम फॉसिल फ्यूल की यूजेज पे, और हमारे पास रेवेन्यू आ गया। उससे ज़्यादा अच्छा है कि फॉसिल फ्यूल तो फिर भी वो यूज़ करेंगे, टैक्सेस होने ज़्यादा करें या कम करें, फॉसिल फ्यूल तो फिर भी यूज़ होगा ना। तो वो एक फॉसिल फ्यूल इज़ एन एमिशन रिसोर्स, हमने उसको कट डाउन करना है। क्योंकि उससे जैसे अभी रोशनी ने बताया था कि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं वो एक्सलरेट हो रहे हैं। सो वी नीड टू कट डाउन दैट। फर्स्ट गोल इज टू अवाम के अंदर अवेयरनेस डालना कि ये फॉसिल फ्यूल से आप लोग थोड़ा हट जाइए। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री। सो जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल अचीव कर लें, उसके बाद आप इस फॉसिल फ्यूल को किसी ऑल्टरनेट के साथ रिप्लेस कर दें जो ज़्यादा एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। बिकॉज वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इन्वायरमेंट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे 30 साल बाद ये सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगी, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो रिन्यूएबल एनर्जी स्टिल इज अ वेरी क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, आपने सोलर की जो बात की थी वो तो हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में सोलर की तरफ बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे कंट्रीज ने करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी किया है। 99% तक वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, सोलर पे नहीं, दूसरी रिसोर्सेज पे। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हिच कैन बी अप्लाइड एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान। सो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अच्छा एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। देखें, सोलर के ऊपर रुझान तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बताई ना मुझे, फॉसिल फ्यूल का यूज़, मैंने इसी के बारे में बताया ना कि जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उनके एमिशन से, हम उसी का रेवेन्यू जो है वो अगेन प्लांटेशन के ज़रिए उसको कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते नहीं, हैं। वो पूरा ए- वो मिटिगेट होता है, लेकिन एक बहुत कम एक्सटेंट पे होता है। फॉसिल हाँ। फ्यूल की सॉरी जो हम्म। इन्वायरमेंटल इमिशंस होती हैं उनको आप उन ये जिस तरह होता है कि किसी चीज को आप कर लो और उसको मिटिगेट कर लो ना, क्लाइमेट डजंट वर्क लाइक दिस। आपने जो चीज इमिट कर दी है वो इन्वायरमेंट में चली गई है, उसका जो इम्पैक्ट है, लेट सपोज वो 100 के मीटर में अगर देखें तो वो 98 है, और अगर मिटिगेशन है तो मिटिगेशन शायद 2 या 3 पे काम करी होगी, या ज्यादा से ज्यादा 10 पे चली जाएगी। तो 1 वर्सेस 1 रेशो 10 का उसमें फर्क आ जाएगा। तो मिटिगेट करना इज ईजियर, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, बजाय इसके कि हम जो चीज सोर्स पे हो रही है उस सोर्स को रिप्लेस कर दें। सो फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम रिप्लेस कर दें, सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन और रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन के अंदर, बजाय इसके कि हम इकोनॉमिक अपनी सारी जो फाइनेंसेस है उसको फिर हम मिटिगेशन पे लगाए। मिटिगेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो तो होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन के बाद भी होनी चाहिए। बिकॉज विद इन 30-40 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो 1990s के बाद आई है जो वो उसको मिटिगेट तो हमें करना ही करना है, उसको मिटिगेट करने में हमें 50-60 ईयर्स लगेंगे। बट जो अब हमारे पास इमिशंस और हो रही हैं उनको और ना होने दें, और उनको हम सोर्स पे ही कट डाउन कर दें। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर us. I think you can add your opinion in it. ओके, अगर हम इसके अलावा मतलब एनी एग्जांपल फ्रॉम यू एक्सपेक्ट जो कि मतलब रीन्यूएबल एनर्जी की हो, इसके अलावा, सोलर के Solar, अलावा। yes, yes, हाँ yes. हाँ। There are many. मैं अभी आगे जो एनर्जी, yes तैयबा। देखें, जो इन्होंने अभी बोला कि जर्मन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च निकाली थी वो फुट स्टेप वाली, वो तो देखें उनके साइंटिस्ट ने निकाल दी, उन्होंने बता दी सारी दुनिया के लिए कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमारे लिए ऐसा करके दे, क्योंकि हम तो अपनी सारी ड्यूटीज जो उन्होंने हम पे लगाई हुई हैं, टैक्सेस लगाए हुए हैं, बिल्स ना चाहते हुए भी लोग पे करते ही हैं।
तो फिर वो किस तरह जो सोलर अफोर्ड नहीं भी कर सकता, वो भी बिल को देखते हुए अफोर्ड मतलब किसी ना तो किसी तरह लगा रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या ये क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो है रिन्यूएबल करे किसी और चीज से। जब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, तो फिर वो क्या करे? एग्जैक्टली यही बात उन्होंने की थी कि आपने की थी या उन्होंने की थी, आई डोंट नो, कि डैम ज्यादा से ज्यादा बना दे या कोई और कर दे, लाइक वो किसी महंगी चीज की तरफ जाने के बजाय कोई और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सोलर के अलावा बहुत सारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये उन्होंने फुट स्टेप्स का जो बताया था वो ये है कि ऐसा कोई अप्लायंस आ जाएगा या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी टाइल्स के अंदर या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, जो फिर आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अवाम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं। और यस यू आर राइट कि SDG 7 की जो अकम्पलिशमेंट है वो ज़्यादातर ज़्यादा एक्सटेंड तक गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पे ही होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन आप अपने से नहीं कर सकते, बहुत छोटे कॉर्पोरेट लेवल पे भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत कम कॉर्पोरेट्स हैं जो इस तरफ मूव कर गई हैं, लेकिन क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन हमेशा होती ही गवर्नमेंट लेवल पे है। आप बहुत पर्सनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर करके या कोई और दूसरी रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर लोगे। सो ये गवर्नमेंट वाली चीज विल बी इंश्योर्ड बाय द इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेचर। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात रही, पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट से बहुत पीछे है। इफ वी सी कि 1947 में इंडिया भी आज़ाद हुआ, बट इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ने भी अपने बहुत सारे SDGs में बहुत प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है। जिस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल, इसने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल को अकॉम्प्लिश कर लिया, वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल रख रहे हैं। बट ऑन कंट्रेरी पाकिस्तान बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। सो पाकिस्तान में बिजली इतनी मुश्किल से आ रही है, वो जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी मुश्किल से मिलती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेसिबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है? अगेन करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये फैक्टर्स पाकिस्तान को पीछे लेके जाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। प्रोविंसेस के दरमियान ही अगर हम वो देख लें। यस बुशरा। बेसिकली अभी इन्होंने बात की कि हुकूमत को ये करना चाहिए या इस तरह से, तो इससे रिलेटेड एक जो है ना एक एसोसिएशन है, ग्लोबल ऑफ ग्रिड लाइटिंग एसोसिएशन है, उसको सिंपल GOGLA से भी जाना जाता है, गोगला भी कह सकते हैं, वट। खैर ये क्या करते हैं, ये जो सोलर लाइटिंग इंडस्ट्री है बेसिकली ये ऑफ ग्रिड होती है। नॉर्मली तो जो वापटा से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो तो ये होता है ना कि वहाँ पे एक ग्रिड स्टेशन पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम तक आती है, बिल होते हैं, वट एवर, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन ये जो है पर्टिकुलरली ये उन्होंने ना डेवलपिंग कंट्रीज में ये ऑफ ग्रिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें ये होता है जो लोग हैं ना जो ग्रिड से दूर रहते हैं, वट एवर कुछ इस तरह से है, उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी तक असेस है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट्स की अगर बात करें ना, मतलब इसके जो फवायद हैं उसकी अगर बात करें, तो पहले तो ये आ जाता है ना सिंपली जो मैंने अभी बताया भी कि ये वर्ल्ड वाइड पीपल जो है लाखों लोगों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। सॉरी। दूसरा जो है ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसमें बड़े ज़्यादा होते हैं, इसमें हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसको बड़े बेनिफिट्स हैं, हमारे बिजनेस जो है वो बड़े प्रमोट होंगे। अगर हम इंडस्ट्री को इस तरह से इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें ना, तो हमारा जो है वो काफ़ी तरक्की की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें लोगों में खुद ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने ठीक है वावड़ा की यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हट के और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हुकूमत से पहले हम में खुद में भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, तो वहाँ से लाइक ये हम इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू। अगेन ये भी पार्टनरशिप्स पे आ जाएगा कि नॉन गवर्नमेंट या NGO बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, बुशरा।
और फिर हाँ, पर्सनल लेवल पे हमारी अवेयरनेस कि हमें पता चले, सोलर में अवेयरनेस, ये इस चीज़ की अवेयरनेस आई है कि हमारे बिल कम आएंगे या हमें बिल नहीं देना पड़ेगा या नेगेटिव में चला जाएगा बिल। अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई है कि अच्छा सोलर एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मोहम्मद ने पॉइंट रेज किया था कि 15 साल तक इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। यस, उसकी 15 साल तक ड्यूरेबिलिटी होती है, लेकिन सोलर सेल्स को फिर हम सर्कुलर इकोनॉमी जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये है कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सेल्स चेंज करो लेकिन सेल्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सो जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल है, फिर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ चला जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ चला जाएगा कि आप सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स के थ्रू उस वेस्ट को ऐसे मैनेज करो कि वो रिसाइकल हो, जो रीयूज हो जाए। सो इस तरीके से उनको वेस्ट को कम से कम किया जाए। अभी okay, so let's move on to the targets of SDG 7. Like SDG 6, we have targets of SDG 7. Universal access to the modern energy. Modern energy means कि जो रिलेटेबल है इस इन्वायरमेंट, इस टाइम के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उसको यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाया जाए। दूसरा ये कि रिन्यूएबल एनर्जी को ग्लोबली उसको वाइड स्प्रेड किया जाए। तीसरा ये कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। एफिशिएंसी मीन्स कि उसको लेसर अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी दी जाए। और फिर इसके जो सेकेंडरी टारगेट्स हैं वो है कि रिसर्च और डेवलपमेंट इस चीज़ में ज़्यादा की जाए। दूसरा ये कि डेवलपिंग कंट्रीज तक अपनी असिस्टेंस को एक्सपैंड किया जाए। डेवलपिंग कंट्रीज मेजरली फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको इस चीज़ से हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जाया जाए। ग्रीन एनर्जी के अंदर ना सिर्फ सोलर आता है, विंड, हाइड्रो और दूसरी हर तरह की फिर एनर्जी आ जाती है ग्रीन एनर्जी के अंदर। यस बुशरा। इन्होंने बात की थी ना कि जो है सोलर सेल्स की लाइक लिमिट जो है वो होती है अपना 15 इयर्स तक या मैक्सिमम, लाइक इन्होंने बताया, और आपने भी अभी उसी के बारे में बात की। तो इसमें इसका हल भी तो है। इसका हल ये है कि देखे ना, जब वो उसमें कन्वर्ट हो जाए कि उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है, उसमें से वो क्योंकि सिर्फ लेड से नहीं बना होता, उसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ हुई होती हैं। इनको जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके, हमारी इंडस्ट्री भी तो काम करती है ना, इसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करके अगेन सोलर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इनका रीयूज़ हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक टर्म होती है डाउन साइक्लिंग, उसके अंदर ये होता है कि लाइक इसको सोलर सेल्स को और स्मॉल जो है ना, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो एलईडी लाइट्स और जितने भी ये एलईडी डिवाइसेस होती हैं ना उनमें इस्तेमाल हो जाते हैं। फिर ये थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में इसको वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग वगैरह और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लाइक कहने का मकसद ये है कि ये बैटरीज में भी यूज हो जाता है एज ए इलेक्ट्रोड्स जो हैं, जब ये इनकी वहाँ लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो इसके तो काफ़ी सारे यूजेस भी तो हैं ना, हम इसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लाइक इनकी लिमिट ख़त्म होने के बाद भी ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो जाते हैं। एग्जैक्टली हमें इसमें फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी जो आपने भी बात किया, वो जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी है, जिसके अंदर आप उसको वेस्ट ना करो, जस्ट उसकी फॉर्म चेंज करो और उसे रीयूज करो। वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, बैटरी, सेल और उसके कंपोनेंट्स को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। यस बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। So we were at their targets. So there are almost three primary targets and two secondary targets. Let's see कि अब हमारे पास दो कंट्रीज की एग्जांपल्स हैं जिसने रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन को, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को अचीव कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइसलैंड। आइसलैंड में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है वो हाइड्रो और जियोथर्मल से हो रही है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि वो हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन को इंश्योर कर सकता है। और ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम है, यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 0.1% ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है और बाकी जो है वो रिन्यूएबल है। इट मीन्स कि आइसलैंड ने अपना ये SDG 7 को अकम्प्लिश कर लिया है। इट हैज मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी resource. Hydro and geothermal, we cannot imply it on Pakistan because hydro और geothermal
जियोथर्मल कुछ एरियाज में कुछ नॉर्दर्न एरियाज में यूज हो रहा है, और हाइड्रो कुछ बलूचिस्तान और सिंध के कुछ एरियाज में यूज किया जा रहा है, लेकिन ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वो नहीं है, रिलेटेबल नहीं है और इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है। देन वी हैव डेनमार्क एग्जाम्पल, जो कि पाकिस्तान के लिए एग्जैक्टली रेप्लिकेबल भी है और अचीवेबल भी है, और इसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी SDG को इंश्योर भी कर सकता है। तो डेनमार्क ने अपना ये SDG ऐसे कंप्लीट किया कि जो उसका वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाटर, जो उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर और स्लज आ रहा था, उसको लिया और उसके थ्रू उसने हाइड्रोलिसिस से बायोमास एनर्जी, जो अभी हमने पढ़ी थी, वो प्रोड्यूस कर ली। उसने जानवरों का जो डंग होता है, जानवरों का जो वेस्ट होता है, जो कि मीथेन गैस की प्रोडक्शन का बहुत बड़ा जरिया होता है, उसको भी एज अ रिसोर्स इस्तेमाल किया और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की। उसमें ये है कि उसमें प्री स्टेप्स हैं। वेस्ट वाटर के अंदर से उसने स्लज निकाला, स्लज को इस तरीके से इस इंडस्ट्री में भेज दिया। ये अगेन सर्कुलर इकोनॉमी है कि उसने वेस्ट को भी वेस्ट नहीं किया, अपने वेस्ट को उठाकर एक एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर लिया। घरों के उसमें से कचरे में से ऑर्गेनिक वेस्ट को लिया और दूसरे वेस्ट को अगेन रिसाइकल कर दिया, रिसाइकल इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे अगर हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट है तो हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करें और उसका जो है प्लास्टिक का फिर इम्पैक्ट कम करें। प्लास्टिक या कोई भी एल्यूमिनियम या कोई भी हमारे पास नॉन डिग्रेडेबल रिसोर्स हो, वेस्ट रिसोर्स हो, उसको उसने डिफरेंट फॉर्म में रिसाइकल कर दिया। और ऑर्गेनिक वेस्ट वाला कंपोनेंट लिया, लाइकवाइज पानी में से भी ऑर्गेनिक वेस्ट वाला कंपोनेंट निकाला और दूसरे पानी को ट्रीट करके साफ पानी अपने दोबारा से एग्रीकल्चरल लैंड्स और घरों में प्रोवाइड किया। और उस चीज़ों से फिर उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। पहले तो उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और दूसरा फिर उसने डिफरेंट बायोप्लास्टिक्स जो कि डिग्रेडेबल भी होंगे, फर्टिलाइजर्स और डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इस वेस्ट को वो किया, कन्वर्ट किया, जिसके थ्रू डेनमार्क जो है अपनी 110% एनर्जी प्रोडक्शन को इंश्योर कर रहा है। मींस कि वहाँ पे एनर्जी डेफिसिट नहीं है, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर एनर्जी देयर सेल्स एंड आल्सो एक्सपोर्टिंग इट। सो डेनमार्क हैज अचीव्ड देयर SDG 7 and this same system can be replicated and can be implemented in Pakistan too. So ये पाकिस्तान के लिए सोलर के अलावा ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि वो अचीव कर सकता है। इसका कोई ऐसे ना नुकसान है, ना ही इसमें कोई इतना रॉ मटेरियल का खर्चा है, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा है और एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा है। सो लेट्स सी पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है कि सोलर एनर्जी का जो उसकी पोटेंशियल है वो 2.9 मिलियन मेगावाट्स है, बट अभी कुछ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सोलर एनर्जी में अभी पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा बिकॉज ऑफ दी सोलर एनर्जी की अप्रोप्रिएसी for many areas. Solar energy plant, solar panels are appropriate for many areas. वो इंस्टॉल करने में आसान होते हैं और कुछ बहुत हमारे टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल सही है, हमारे कंट्री के टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल इंस्टॉलेबल है। देन विंड एनर्जी के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 50,000 मेगावाट्स है, स्पेशली इन सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस। बट ये भी एक अनटैप्ड एरिया है जिसमें हम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिसोर्स से यूज नहीं कर रहे हैं। अगेन हाइड्रो पावर में भी यही हो रहा है, जितना हमारे पास कैपेसिटी है या पोटेंशियल है, उससे बहुत कम कैपेसिटी या पोटेंशियल का हम हाइड्रो पावर यूज कर रहे हैं। और इसमें जो तमाम चीज़ों की अंदर जो अनटेपर्ड एरियाज है, उनके अंदर जो मेजर कंस्ट्रेन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसेस का ही है कि उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई हमारे पास मॉडल नहीं है जिसके ऊपर हम काम करके ये अचीव कर पाए। दूसरा ये कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि 2030 गवर्नमेंट का भी और इंटरनेशनल वर्ल्ड का भी डेवलपिंग कंट्रीज पे, और दूसरा कोप्स का भी यही अग्रीमेंट है इंटरनेशनली, ये सब कंट्रीज के अंदर अग्रीमेंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी एनर्जी जनरेशन का 30% हिस्सा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से इंश्योर करेंगे। और एवरी इंडस्ट्री इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि एटलीस्ट 30% जो वो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल होनी ही होनी चाहिए। और इसका कुछ प्रोपोर्शन पर्सनल लेवल पे भी आएगा कि पर्सनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे आप इतने परसेंट एनर्जी, 7 to 8% एनर्जी आपकी रिन्यूएबल होनी ही होनी चाहिए। ऑल्सो पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इसी रिन्यूएबल एनर्जी
मिक्स का हिस्सा है। क्योंकि सी पैक की ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन है बलूचिस्तान के साहिल पे कि वो अपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को की प्रोडक्शन को इंश्योर कर सकता है। सो इस वजह से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक सी पैक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कुछ जो अपने प्लांट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इट इज इंटेंडिंग to increase this percentage in the coming years till 2030. So major challenges we have discussed that finances और जो है infrastructure limitations है। दूसरा ये कि हमारे जो करंट रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 to 6% है, जो बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये बहुत ज़्यादा कम है, कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन नंबर एंड अवर जो करंट एनर्जी प्रोडक्शन है कि अगर आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन कन्वेंशनल से इतनी नहीं हो पा रही, यू कैन नॉट मूव दैट एनर्जी, बट आप उस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ऐड कर दो और अपनी एनर्जी कंजम्पशन को प्रोडक्शन को इंश्योर करो। तो पाकिस्तान अभी तक ये नहीं कर रहा है, ओनली 5 to 6% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है मेजरली क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड है, उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस नहीं है और एक ऐसा कंट्री है जो कंट्रीब्यूट लेस देन 0.01% करता है क्लाइमेट चेंज के अंदर, बट मेजरली फोर्थ अफेक्टेड कंट्री है पाकिस्तान, जो कि टिल 2030 सी लेवल राइज और ग्लेशियर मेल्टिंग और फ्लडिंग भी फेस करेगा और टिल 2050 इसके कुछ इलाके समंदर के नीचे भी चले जाएंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और इस क्लाइमेट इम्पैक्ट को वो कम कर सकता है कि अगर वो वास्ट लेवल पे अपने एनर्जी प्रोडक्शन को रिन्यूएबल की तरफ मूव कर दे, ताकि जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो उसको कम कर दे। दूसरा ये कि उसका फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी प्रॉस्पेरिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो जाएगा। इफ वी सी कि पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन 4% है, न्यूक्लियर का 8%। न्यूक्लियर भी क्लीन एनर्जी के अंदर आती है, बट नॉट टू मच, बिकॉज न्यूक्लियर का रॉ मटेरियल जो है वो एक तो खुद एक हैजर्ड है, दूसरा ये कि वो कॉस्टली हो जाता है। तो न्यूक्लियर से भी प्रोड्यूस हो रही है, बट न्यूक्लियर इज नॉट अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा हाइड्रो से 21% की जा रही है, और फिर हमारे पास ऑयल, कोल, गैस आ जाते हैं, जो जिससे फिर पूरा ये प्रोपोर्शन जो है, मेजर प्रोपोर्शन इन्होंने कवर किया हुआ है। 27% नेचुरल गैस से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो इसमें पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि यूनेस्कैप ने COP27 में पाकिस्तान के लिए एक प्लान बनाया, रिन्यूएबल एनर्जी प्लान, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्लान और मॉडल, जिसके थ्रू पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए ऐसी रेगुलेशंस और रूल्स बनाए जाएंगे कि वो इनकरेज करेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रीज मूव कर जाए रिन्यूएबल की तरफ, कि वो 50-50 प्रोपोर्शन पे आ जाए कि 50% वो रिन्यूएबल यूज करें और 50% वो कन्वेंशनल पे रहें। और फिर नेशनल लेवल पे जो एनर्जी प्रोडक्शन है और प्रोवाइडेंस है, एनर्जी एक्सेसिबिलिटी है, उसको रिन्यूएबल की तरफ मूव करके इंश्योर किया जाए कि आवाम के पास बिजली आ रही है। और इसमें जो मेजर रोल होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी का होगा। सो यूनेस्कैप ने जो मॉडल दिया उसके अंदर ना सिर्फ सोशल बल्कि इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, हर तरह की पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये डिज़ाइन दिए कि थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान ये इंश्योर करे कि टिल 2030 उसके पास 30-70 का मिक्स आ जाए रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी मेथड्स का, और इंडस्ट्रियल लेवल पे 50-50 का मिक्स हमारे पास इंश्योर हो जाए। देन we have an activity, a very interesting activity for 15 minutes. You will have 15 minutes to design a renewable energy project. Before that, I want to add that कि जैसे मोहम्मद ने ऐड किया कि सोलर के अलावा हमारे पास और कौन सी टेक्नोलॉजीज है। सोलर के अलावा हमने जो कॉमनली सुनी है वो विंड, हाइड्रो और जियो है, और बायोमास है। लेकिन इसके अलावा जो न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि आप हाइड्रोजन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो जो कि चीप होती है, और फिर उसके थ्रू आप वाटर स्प्लिटिंग कर सकते हो, या उसके थ्रू आप एयर को कैप्चर करके स्प्लिट कर सकते हो और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो फ्यूल सेल्स के अंदर। और फिर एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है,
वो वाटर वेपर्स ही होते हैं जिन्हें कंडेंस करके आप दोबारा वाटर बना सकते हो। तो सो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं गई है, अभी वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ अरसे तक जाएगी, बट देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट in developed countries about hydrogen technology. Then we have carbon capture. कार्बन कैप्चर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है और यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो कार्बन कैप्चर इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ ensuring SDG 7. So hydrogen technology, carbon capture and many other water splitting भी है हमारे पास, photocatalysis भी है जो laboratory levels पे भी हो रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल्स पे भी हो रही हैं, बट आने वाले फ्यूचर के अंदर it would be ensured on the government or national levels. So this is an interesting activity for you guys कि अपनी city specific renewable energy projects को बनाएं। सबसे पहले कि वो आप लोग देखें कि आप लोगों के city में क्या resource है, renewable resource जो आप use कर सकते हैं, जिसमें जो और आपकी energy demands क्या है आपके शहर की। दूसरा ये कि वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स किस तरीके से आपके सस्टेनेबिलिटी गोल्स से अलाइन करेगा, कौन से सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव करेगा और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ये अचीव करेंगे। सो यू हैव 15 minutes to think about it, then we will discuss on it. Yes, Bushra. जैसा कि आपने कहा ये अपने सिटी के लिए लाइक आप कुछ अगर एनर्जी जो है वो रिसोर्सेज उसको प्रोड्यूस करना चाहें, वट एवर एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहें, बेसिकली यही क्वेश्चन है ना आपका? जी जी जी। अच्छा, तो इसके लिए ना अगर क्योंकि हमारा जो सिटी कोई इतना इस्टेब्लिश्ड या कोई उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह लें इवन जो मैं अभी एक चीज़ बताने लगी हूँ ना वो गांव में भी हो सकती है। देखें जिन एरियाज़ में हमारा कह लें मार्शी एरियाज़ है या फिर जहाँ पे ये पॉन्ड्स छोटे छोटे या कोई नदी नाले वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उससे ना एक चीज़ की जा सकती है, एक टर्म होती है बायोफ्यूल्स या उसे कह लें बायो पावर कह लें, दोनों टर्म्स इसके लिए आ सकती हैं। तो उसके लिए एक जो हम एनर्जी कह लें प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं हम एलजे पावर एनर्जी जो है ना इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या हम करेंगे, हम जो है लाइक उसमें से एलजी का इस्तेमाल करके उस पानी में से, तो उससे हम बायोफ्यूल्स और कह लें बायो पावर जो है ना हम उससे जनरेट करेंगे, जो कि एक उससे 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं हमारे, वो काफ़ी बल्कि एसडीजी से रिलेट कर सकते हैं। एक तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, दूसरा उससे पानी की जो कह लें क्वालिटी है वो बेहतर हो गई क्योंकि हमने उसमें से वो एलजी का इस्तेमाल हमने उसमें से कर लिया। तीसरा जब हम पानी की क्वालिटी उससे बेहतर हो जाएगी तो उसमें हम बाकी उसको जो है वो चाहे कंटामिनेटेड वाटर है जैसा भी है उसकी क्वालिटी को बेहतर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरा जो है ये रिलेट करता है ऑब्वियसली जब पानी साफ़ हो जाएगा तो हमारी हेल्थ जो है ये वो भी बेहतर हो जाएगी, गंदा पानी वगैरह उससे जब पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। चौथा ये फिर रिलेट करता है ऑब्वियसली हेल्थ, तो फिर हेल्थ एजुकेशन से रिलेट करती है, हेल्थ होगी तो एजुकेशन होगी। और इसके अलावा ये नो पॉवर्टी से यूज़ करता है, हेल्थ होगी तो हम उसको पॉवर्टी को ख़त्म कर सकेंगे। तो इस तरह से ये लाइक काफ़ी चीज़ों से रिलेट करता है जो कि एक चीज़ पॉसिबल है और इसके ऐसे नुकसानात नहीं है कह लें, इससे कोई और चीज़ें ऐसा इफेक्ट नहीं होती, अगर होती हैं तो काइंडली आप गाइड कर दें। इस पे वैसे स्टेप भी लिया जा सकता है और ये एक अच्छी चीज़ भी है। Yes, thank you, Bushra. You are absolutely right कि LG बेस्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फ्यूल सेल्स है बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट लेवल पे काम हो रहा है और उसके वो नहीं है, कोई नुकसानात नहीं है, उसके बेनिफिट्स हैं, बट उसके अंदर एक जो मेजर कंस्ट्रेंट आता है वो फाइनेंसेस का आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। एलजी का जो वो है ना, एलजी इज अ लिविंग बीइंग, सो हमेशा लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर जो
प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रन करना आर रियली डिफिकल्ट. सो ये दो कॉन्स्टेंट्स है. इसके अलावा योर आइडिया इज रियली गुड. थैंक यू. एंड Zunaira? Zunaira, you can unmute your mic, please. Zunaira, you are not audible. You are not audible. Zunaira, you are not audible. Sorry. You can write it in the comment box. Yes, Sikandar. If anyone wants to say something, they can just unmute their mic and contribute, please. मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. अभी कुछ ही दिन पहले एक रिसर्च थी तो उसमें ना, अभी पाकिस्तान में तो खैर नहीं, लेकिन एक यूरोपियन कंट्री, मुझे नाम स्किप हो गया, खैर उन्होंने ना पता है क्या किया, उन्होंने साइकिल के साथ ना एक रॉड को उसके टायर के ऊपर जो है ना वो अटैच कर दिया, सीट और टायर के बिल्कुल दरमियान में. वो रॉड क्या करता था, जो ही वो हल्का सा कह लें जैसे टेंजेंट होता है ना, इस तरह से जस्ट वो साइकिल के टायर के साथ जो है ना वो टच होता है. ठीक है, इतना सा टच होता है कि वो चलने में उसके रुकावट नहीं बनता, लेकिन उससे टच होता है. जैसे ही वो टायर घूमता है वो भी साथ साथ घूमता है. तो उसका ये होता है कि लाइक वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और वो जो साइकिल है बगैर किसी उसको चार्ज भी नहीं उसको करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो वो सिंपली ई साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये उनकी एक काफ़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी कि जस्ट आप वो थोड़ा सा यूं क्या कहते हैं उसको चला रहा था साइकिल को, जैसे ही वो रोटेट हो रहा था वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड तेज हो रही थी और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी. इवन फिर उसमें ना सेंसर लगे हुए थे उसी उसी रोटेटर में. वो क्या होता था कि अगर वो लाइक गिरने लगा है तो वो फौरन से सेंसर जो है वो जो है ना वो कह लें चलना शुरू हो जाता था, उसकी लाइट्स ऑन हो जाती थी. तो ये एक उसका एक अच्छा मेथड था, लाइक ये भी एक ऐड हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ वो उसको ई ई बाइक या ई साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए एक बेहतर तरीका था. हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि किसी ऑर्डिनरी साइकिल को आप ई साइकिल में कन्वर्ट कर दो. ऑल्सो टेक्सास की बात की थी मोहम्मद ने. उसमें एक पॉइंट ये था कि नेदरलैंड्स इस बिहेवियरल चेंज को, टेक्सास तो अगर पाकिस्तान लगा देगा वो तो टैक्स देते रहेंगे अवाम, क्या है. लेकिन बिहेवियरल चेंज को जो इस तरीके से किया है नेदरलैंड्स ने कि वो जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या अपने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई बंदा गाड़ी नहीं रखता और साइकिल पे जाता है तो दे इनकरेज देम बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा मनी. उसको इंसेंटिवाइज कर दिया उन्होंने. और जो बंदा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगा रहा है हाउस होल्ड लेवल या फिर कोई भी चेंज अपने बिहेवियर के अंदर या यूजेज के अंदर लेकर आ रहा है, दे जस्ट इंसेंटिवाइज इट. और इसकी वजह से फिर उनके यहाँ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को इंश्योर किया जा रहा है.
So if anyone wants to contribute in the activity, they can unmute themselves and tell their city-specific renewable energy project. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान Welcome. है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायो साइंसेस के अंदर है। तो मैं रिसेंटली एक रिव्यू के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। उसके अंदर जो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास होता है ना, इट्स एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्लांट बेस्ड मटेरियल है। आप लोगों में से जो साइंस या बायो वाले होंगे वो ये समझ सकते हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज जो होता है उसका ही नाम लिग्नोसेलुलोज होता है एक्चुअली। तो उसके ऊपर ये पूरा रिव्यू था कि उसके ऊपर डिफरेंट जो रिसर्चेस कंडक्ट की जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके थ्रू जो बायोफ्यूल्स आप लोगों ने मेंशन किए हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब ये एक तरह से एक वेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट्री वेस्ट होता है हमारे पास, उसके रेजिड्यूज होते हैं, या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है क्रॉप्स का। तो उसमें से सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और लिग्निन, ये तीन मटेरियल निकाले जाते हैं और फिर इनको बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने के डिफरेंट जो प्रोसीजर्स या हमारे पास मेथोडोलॉजीज हैं उनके ऊपर ये रिव्यू था। और जैसे कि बायो रिफाइनरी होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बायोमास को अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि बायोफ्यूल्स बनती हैं, केमिकल्स, ऐसे मटेरियल्स। और मज़े की चीज़ ये है कि ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि जो कार्बन एमिशन या जिसे हम ग्रीन गैस एमिशन कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये उसको भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल ऐसा है। Thank you, Rehan. And yes, this is a very fruitful point. इसके अंदर यही है कि आप उन्हें बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर लें और फिर ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल और कॉमन फ्यूल उसको यूज कर लें योर व्हीकल्स, जिससे आपकी बहुत हद तक emissions कम हो जाएंगी. You are right. Thank you so much, Rehan. If anyone else who wants to contribute in this activity, please unmute your mic. Anyone of you want to say something? Sikandar, you have raised your hand, but you are not unmuting yourself. Yes, Junera, you can unmute yourself and मैम सॉरी फॉर द ट्रबल, वो इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ था। मैम मैं कह रही थी कि मिस बुशरा ने जैसे बोला ना कि हमें बायोफ्यूल्स के बारे में काम करना चाहिए, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है ना, तो उसमें हमारे काफ़ी प्रोफेसर्स ने इस पे काम किया है। तो उन्होंने एल्गा पे नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि जो शुगर केन के जो इतने ज़्यादा एंड में डेबरी बच जाता है उसको यूटिलाइज़ करने के बाद, और वीट क्रॉप को, तो हम उसको एक किस तरह से फ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। और उन्होंने चाइनीज़ साइंटिस्ट के साथ ये काम किए थे और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, और चाइना के अंदर वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है कि उनके से बायोफ्यूल्स बन रहा है, बट अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं आया। दूसरा उन्होंने एक मॉडल बनाया था, वो एनईडी की यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स के साथ था। उसमें ये था कि अगर जैसे प्लांट्स होते हैं उन्हें यूजुअली जो आपको स्पेशल प्लांट जो आप ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे सेफ्रॉन हो गया, उसके अलावा मशरूम्स हो गए जिनकी कल्टीवेशन दुबई करता है, तो और मिलियंस और बिलियन डॉलर का वो एक बिज़नेस होता है।
तो वो लोग यूजुअली यूटिलाइज करते हैं रेड और ब्लू वेवलेंथ। तो बाकी की जो वेवलेंथ बच जाती है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सोलर पैनल, और इस तरह से उनको मतलब एक अच्छा वो मिल रहा है। तो बस ये कहना था। यस, एंड रेहान ने भी यही पॉइंट रेज किया था कि जो वेस्ट, जो वुड के अंदर लिग्नोसेल्यूलोस है, वही जो आप कह रही हैं, उसको यूज करके बायोफ्यूल्स बनाए जाए। और चाइना इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है। चाइना के अंदर मेजोरिटी ऑफ देयर फ्यूल्स हैव बीन replaced by this biofuel, and this is a very sustainable and a green form of energy. Yes, Asad. आई हैव क्वेश्चन के पाकिस्तान में विंड जो है, विंड करंट विंड जो होते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में इनका करंट एयर का एक वो है, लाइन है, वो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे अच्छी विंड अवेलेबल है, यानी कि मानसून में भी जैसे सही हवाएं चलती हैं, तो वाई वी कैन इंस्टॉल हैवी विंड टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइंस के लिए हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वो चाहिए होगी, स्पेसिफिक लेवल ऑफ विंड की पोटेंशियल चाहिए होगी। तो पाकिस्तान में, सिंध और बलूचिस्तान में है विंड टर्बाइंस, जो एरियाज जो कोस्ट के ज्यादा नजदीक हैं, या जो एरियाज जो विंड को अप्रोप्रिएट लेवल तक रिसीव कर रहे हैं, उनमें है। बट विंड टर्बाइंस आप पूरे मुल्क में नहीं लगा सकते, क्योंकि हर खित्ते में इस तरह की विंड्स नहीं चलती। हो सकता है मानसून के एक सीजन में अगर 15 दिन बारिशें हो रही हैं, जैसे कल बारिश हुई है तो आज बारिश नहीं हुई है, हवा नहीं चलेगी। तो मानसून के एक महीने की हवा है, तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हमें थ्रू आउट द ईयर चाहिए होगी वो विंड। तो इसलिए सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ये विंड टर्बाइंस इंस्टॉल्ड है, जो कि सारा साल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सारे उसके लिए ये रिलेटेबल और इम्प्लीमेंटेबल नहीं है सारे एरियाज और रीजन्स के लिए। कुछ एरियाज के अंदर, जैसे थर पार्कर के अंदर, सोलर पावर्ड प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कुछ के लिए फोटोवोल्टाइक सेल्स बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ के लिए फ्लोटिंग सेल्स बहुत अच्छे हैं कि आप पानी के ऊपर इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी आती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लें। सो हर एरिया स्पेसिफिक वो है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं कि हर एरिया के हिसाब से उसका अपना रिन्यूएबल एनर्जी वो प्रोड्यूस करे। जैसे नॉर्वे ने जियोथर्मल और हाइड्रो पावर को यूज किया है। जियोथर्मल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान, नॉर्वे एंड आइसलैंड। सो 99% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अगर उन्होंने प्रोड्यूस करी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अचीवेबल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के पास ये रिसोर्स ही नहीं है। सो पाकिस्तान हैज टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इट, कि वो किस इलाके में क्या कर सकता है, या फिर वो एक होलिस्टिक अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकता है कि होलिस्टिकली वो प्रोड्यूस कर दे, कोई ऐसा डेनमार्क की तरह सिस्टम ले आए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए, जिससे वो वेस्ट कम से कम जनरेट करे, या वेस्ट कोई सर्कुलरी साइक्लिक वे में यूज करके अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर ले। If someone else has to say something on the activity or anything else, they can unmute their mic and say. Otherwise, I think we have Hamara session has come to an end, and Bushra has added a point that geothermal can be implemented in Chitral. Yes, कुछ इलाकों में geothermal implementable है और installed भी है, but हर इलाके में ये install नहीं हो सकता. So thanks Bushra. And if someone wants to say something, any suggestion, recommendation, you can say. Otherwise, we are going to end our session.
So thank you so much, everyone. Over to you, Maimuna. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा हमें एक्सप्लेन किया है और हमने बहुत कुछ सीखा है आज के वर्कशॉप से. Guys, you have any question you can ask from ma'am. We have time now. If you have any question, do ask. अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना सेशन एंड कर लेते हैं. थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना वक्त दिया हमें और हमें इस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज एवरीवन.